Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. और हम एनालिसिस करेंगे लास्ट वीक का एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वीक्स ट्रेडिंग प्लान राइट बिफोर दैट आई वांटेड टू गिव यू द टेक्स्ट इज रियली बिग, थोड़ा बड़ा है। तो ये जो हमारी एस्ट्रो टाइमिंग है इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आई विल डिलीट इट। बट पहले टाइमिंग की बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक का, दैट व्हाट इज द टाइमिंग that has worked us for the entire month, this month for last 3 weeks. So I hope कि next week भी timing काम करे. But it comes with a caveat condition that it may work, may not work because you are still in a practicing mode. But the rule is very simple. जो मैं last time भी बोला था, this entire year from January, Monday has been able to give us a trend based on Monday's closing. तो मंडे अगर हमारी बेसिकली टाइमिंग सही हो जाती है, व्यू सही हो जाती है, then there is a very high chance that the weekly view will go definitely correct, जो basically last 2 months में हुआ है, right? So this is the timing, guys. What it looks like on 14th March on a Monday is basically it looks like a full day positive. 9:15 to 11:45 good positive, good candles. 11:45 to 2:45 mild positive, that means buy on dips है, uptrend may continue. 3 to 3:30 range bound, we might see a small dip, okay, but that's not guaranteed, it might go upside also. So full day looks buy on dips. So Monday at least तो मैं sell on rise करने की कोशिश नहीं करूंगा. I'll not try that. 15th March, which is Tuesday, if you look at the first 1.5 hours is good positive, that means Monday की जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगी. एंड सिंस मंडे अगर बहुत बड़ा एक पॉजिटिव हमें मिल जाता है तो ट्यूसडे हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मिलने की पॉसिबिलिटीज है, एंड दैट इज व्हाट द टाइमिंग इज आल्सो शोइंग अस. सो 11 to 1 PM रेंज बाउंड है टू डाउन साइड, मतलब ज्यादा बड़ा फॉल नहीं होगा बट इट वुड बी अ रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ थिंग, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड देन इट विल अगेन कंटिन्यू द ट्रेंड till 2 PM for 1 hour and 2 PM to 3:30 down, right? So Tuesday एक pause candle market बनाने की कोशिश कर सकता है, but the bias is still towards the positive side. Wednesday एक perfect pause candle दिख रहा है मेरे को, and since it is 1 day before expiry, it also makes sense. And timing भी also अगर आप देखोगे 9:15 to 12:15 range bound दिख रहा है with downside bias. ओके बड़ा नहीं गिरेगा बट अपसाइड भी ज्यादा नहीं जाएगा. 12:20 to 2:45 positive, and that is where it will try to recover, and 12:45 to 3:30 it may be down. Okay, right? So आप अगर देखोगे वेडनेसडे की जो डाउन साइड है in the last 1 hour, that market will try to basically sell. Okay, that's what timing के हिसाब से बता रहा है. And once the market is trying to sell, buyers are defending from 12:30 to 2:45, it becomes positive. Buyers will take it up to get more profit on their longer positional longs basically. And then 2:45 to 3:30 may be down, but this is confusing, I can't guarantee. If you look at depending upon Wednesday 9:15 to 12:15, because it is 3 hours of time period, right? How big the downside is, उसके बेसिस पे वेडनेसडे की कैंडल का कलर डिसाइड होगा, whether it is positive or negative. Whether it is positive or negative doesn't matter. I somehow think that it would be a doji candle. My view would be a positive, a small green doji candle. Okay, that would be my view. And 17th March, which is basically the expiry, we are seeing a 9:15 to 12:30 good downside, because if market is going Monday, Tuesday, Wednesday, buy on dips almost side, and we are saying Wednesday is also a green positive, green doji candle, it makes it very obvious के Thursday को the P might be a jackpot from the morning itself. So 9:15 to 12:30 हम एक downside देख सकते हैं, and 12:45 to 2:30 market positive जा सकता है. Okay, and then range bound. So typical expiry रहेगा, and 18 March being a Friday, 9:15 to 12 PM positive, 12:30 to 1:30 good downside, and 1:45 to 3:30 range bound but downside bias. That means we are saying after 12:30 on Friday we are not in a buy side. Okay, and which is a typical Friday. Typical Friday second half में book होगी, profits book होगी, and whenever Monday, Tuesday, Wednesday we are on the positive side, and Thursday also becoming a perfect expiry, it makes very good sense कि Friday हमें एक अच्छा downside मिले,
But that downside, guys, do not take a PE. Okay, that downside will happen after 12:30. तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है? मैं सिर्फ मंडे का रखता हूँ, रेस्ट एवरीथिंग आई हैव डिलीटेड. ओके, right? Let's keep it Monday and very quickly go ahead and do the weekly analysis for last week and what we are going to do next week. Okay, guys, अगर आप देखोगे, मतलब अभी मैं रिव्यू में ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा because we have been doing the intraday review very perfectly, right? हमने क्या बोला था, market is going to be volatile. We don't know which side it will give how much of big points, right? But the timings we are going to help you. The timings have been wonderful. So हमारे इंट्राडे ट्रेड तो बहुत अच्छे गए हैं. खाली ये एक जो ट्रेड था हमारा वेडनेसडे को, ये थोड़ा हमारा गलत गया था. तो वेडनेसडे को हम लोग सोच रहे थे कि till 140 we might see a very brutal sell. Okay, and after 140 we might see a very good positive side. It happened like that, but the sale was not brutal. And that brutal sell के व्यू के हिसाब से मैंने जो पी का एक पोजीशन लिया था, दैट वेंट इनटू लॉस. अदरवाइज टाइमिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे सब काम किया है. सो वेडनेसडे की जो हमारी व्यू थी कि फर्स्ट हाफ में विल गेट ए ब्रूटल सेल, दैट डिड नॉट वर्क. रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैज वर्कड रियली वंडरफुली एंड वी हैव मेड मनी एवरी टाइम. इफ यू गाइस रिमेंबर, थर्सडे भी हमने पी जैकपॉट लिया था and Friday also we didn't do it in the morning, but after the morning we started selling it where we made small money. So the actual money was made Monday, Tuesday for me personally. Thursday, Friday, Wednesday was a loss, right? So out of 4 days, 5 days out, we were lost in one day. Rest of the days were positive. So अगर मैं एक weekly analysis लेके जाऊं बैंक निफ्टी की, मैं पहले बता देता हूँ how weekly से start करते हैं. See, it is coming from a reasonable bottom. First of all, Bank Nifty, if you look at around this level, it has taken a reasonable bottom. It is firing back on the upper side. It is coming after a 4 weeks of red candle. Okay, since it is a green candle, okay, and it's a fight back candle. It really, from the psychology I'm talking about, it doesn't matter whether it is a red candle or it's a green candle on a weekly candle. It's a fight back candle from the bottom. Okay, if it is a fight back candle, if you look at from here to here, it's a huge fight back candle. Okay, so that means next week market, the view should be market should not fall big. So people who are looking for to take a very good sale and make like huge amount of money, अगर वो वैसा सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो व्यू नहीं होगा. Market might form a small green candle, weekly basis candle बोल रहा हूँ, but still I think that it is going to be a green candle. Okay, it might be a weekly candle, it might be a dozy. Okay, whether it is the body is on the upper side or the lower side, we don't know, depending upon Thursday and Friday का fall, right, when the weekends. But मेरा जो व्यू है कि मार्केट बेसिकली अपर साइड ही रहेगा, वीकली कैंडल ग्रीन कैंडल बनाएगा, डोजी टू बिगर कैंडल, एनीथिंग इज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का मूवमेंट के हिसाब से. हाउएवर लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें वीकली की, तो वीकली में थोड़े से इस बार लेवल ज्यादा है. बट इफ यू आर ए प्लेयर, इस पे ऑप्शन सेल, तो थोड़े से पॉइंट्स झेल सकते हैं. ऑप्शन बाहर तो इंट्राडे ही करेंगे. ऑप्शन सेलर जो थोड़े से पॉइंट्स झेल सकते हैं, आपको सिर्फ 3-4 लेवल ही याद रखने हैं. एक तो ये हमारी डू डाई लेवल है. ओके, ये फ्राइडे की लो लेवल, लो ही है बैंक निफ्टी की. अगर डेली में जाएंगे, ये फ्राइडे की लो है, डेली में चले जाते हैं, बट वी नीड ए बिगर चार्ट. इफ यू सी, दिस इज ऑलमोस्ट फ्राइडे का, नो फ्राइडे का लो नहीं, फ्राइडे की क्लोजिंग. ओके, ये फ्राइडे की क्लोजिंग का लेवल है एक्चुअली. ओके, सो वीकली में आते हैं, मैं एक बार वीकली बता देता हूँ. या तो ये जो लेवल है, ये लेवल आपकी जो है, ये आपकी डू डाई लेवल है नेक्स्ट वीक का. सो दैट मींस बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम बाय करेंगे नहीं. व्हाट इज दिस लेवल, विच इज 34,033, 34,100 ले लो. ये बहुत पावरफुल लेवल है. ये लेवल हमने बहुत पहले भी आपको दिया है, मेनी टाइम्स वी हैव गिवन दिस. ओके, तो 34,100 का लेवल आप ले लो. सो 34,100 के लेवल के नीचे मार्केट अगर है तो हम बाय नहीं करेंगे, बट आई विल नॉट सेल ऑल्सो. Okay, because my view is buy on dips at least for first 3 days.
Even on a Thursday, it would be closing on the upper side only. Even if the first half is down, second half it will do a recovery and close it on the upper side. That's the view. Okay. So 34,100 के आसपास अगर नीचे अगर मार्केट है, I will not sell. But if it is going from bottom and crossing 34,100 and sustaining for an hour, I'm talking about option sellers, long position, positional wale. Then you can go for sell. Ideally, my target would be this. Okay, 35,900 would be my target. बीच में और कुछ लेवल दे ही नहीं रहा मैं आपको. 34,100 के बाद सीधा 35,900 ही है मेरे पास, which is like around a 1800 पॉइंट का मूव अगर मार्केट नीचे से ऊपर आता है. ठीक है, अगर इन दिस केस मार्केट होता है, फॉर एग्जांपल सिनेरियो बता देते हैं. मार्केट ये देखो, ये मैंने एक जोन बनाया था 33,200 के आसपास. ठीक है, ये जोन कल भी काम करेगा, मतलब नेक्स्ट वीक काम करेगा. मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मार्केट ये लेवल तक आएगा. ठीक है, बट मैं बोलता हूँ बाई चांस मंडे जैसे ग्लोबल मार्केट है, थोड़ी सी न्यूज, चाइना का लॉकडाउन है, there are some bombings that Russia has done on the यूक्रेन का मेन बेस, उसके बेसिस पे चलो मंडे मार्केट बड़ा गैप डाउन भी हो जाता है. तो मार्केट अगर आपको ये लेवल के आसपास मिलता है, आई स्टिल थिंक दैट दिस इज वेरी वेरी रेयर सिनेरियो, बट बाई चांस मिलता है 33,500 टू 33,400 का जो रेंज है, ये यहाँ पे अगर मिलता है, यू गो फॉर पोजिशनल लॉन्ग. यहाँ पे ऑप्शन बायर भी जा सकते हैं लॉन्ग. ओके, ऑप्शन बायर लॉन्ग जा सकते हैं. यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपको घबराने की कोशिश करेगा, बट अल्टीमेटली 35,400 तो आ ही जाएगा मार्केट का. ये जो वीकली का टू दिस वीक का हाई है ना, ये आ जाएगा. तो ये जो व्यू है ना, ये व्यू अगर मार्केट मंडे ऐसे करता है, ठीक है, तो हम ट्यूसडे वेडनेसडे तक भी यहाँ तक लेके आ सकते हैं 35,386. ओके, बट मुझे नहीं लगता ये होगा, देखते हैं. अदरवाइज मार्केट अगर ये पॉइंट से नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से बाई ऑन डिप्स यहीं से ही बन जाती है. 34,100 से ही बाई ऑन डिप्स बन जाती है. ठीक है, 34,100 से भी मार्केट अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो आप मार्केट को लेके जा सकते हो, और मैं आपको दे रहा हूँ टारगेट सीधा 1800 पॉइंट्स का. ओके, 35,900 के आसपास. ये सीधा नहीं जाएगा, बट अल्टीमेटली वेडनेसडे डे एंड तक, सॉरी वेडनेसडे फर्स्ट हाफ तक शायद ये 1800 पॉइंट चला जाए बैंक निफ्टी. ठीक है, अभी न्यूज आ गया, बड़ा वार हो गया तो अलग बात है, उसके देखेंगे. उसके लिए तो एस्ट्रो टाइमिंग हमारा है, जो हमें हेल्प करेगा ट्रेडिंग में, इंट्राडे ऑप्शन बायर्स. बट स्टिल आई वुड टेक ए रिस्क ऑफ बाइंग इवन ऑप्शन बाइंग on a positional long from this level if I get it. Okay, the first target would be this. Okay, the second target would be 36,350. Okay, and the third target would be 37,230. ये बहुत दूर की बात है. ठीक है, ये बहुत दूर की बात है, बट यहाँ तक भी मार्केट शायद आ जाए, डिपेंड्स कि कितना फास्ट मार्केट मूव करता है. बट जो रीजनेबल टारगेट है, इवन वेडनेसडे तक हम यहाँ तक 36,300 तक की टारगेट बेसिकली लेके जा सकते हैं बैंक निफ्टी में दिस वीक. ओके, एंड दैट टू इवन बिफोर वेडनेसडे फर्स्ट हाफ. तो मंडे जो हमारा एक व्यू है कि मार्केट विल गो ऑन ए वेरी वेरी हेवी बुल रन, that might be possible. Can we get a 1,000-point move on Monday itself? I don't know, might be possible, but Monday sell मत करना. Okay, buy on dips में ही रहना, Monday sell मत करना. I would recommend कि Tuesday second half तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेंड को. तो यहाँ तक तो लेवल तो मैं यहाँ तक दे रहा हूँ, बट ये 35,900 के आसपास तो मार्केट को आने दो बिफोर यू कट योर लॉन्ग पोजीशंस. ओके, माय पर्सनल चॉइस ट्रेड वुड बी दिस 35,900, 36,300. उसके ऊपर सब बोनस ही है, बट मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है. मतलब आई एम गिविंग 3,000 पॉइंट का मूवमेंट, बट ये गारंटेड नहीं है. ओके, ये एक अनटच लेवल है बैंक निफ्टी का. सो इट माइट बी पॉसिबल दैट मार्केट कम्स इन ए हरी. जब भी मैं अनटच लेवल देता हूँ, मार्केट जनरली हरी में मूव करता है, राइट. तो 2 दिन के अंदर शायद, सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट ए 2,100 पॉइंट का मूव. पॉसिबल है कि 2 ही दिन में दे दे आपको, मंडे और ट्यूसडे कंबाइंड, पॉसिबल है. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है. इसके बाद आपको लॉन्ग नहीं रहना है. ये चला गया तो चला गया, पोजीशन कट कर देना है आपको, या फिर आप ट्रेल करो तो देख लेना.
ओके ये गारंटी है नहीं, बट कैपिंग के हिसाब से अगर आप मेरे को पूछोगे तो कैपिंग मेरी यही होनी चाहिए, 37,300 की अपर साइड कैपिंग है मेरी बैंक निफ्टी में, 37,300 विच इज ऑलमोस्ट लाइक 2,800 पॉइंट का अपसाइड। ठीक है, बट ये एरिया में मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। मार्केट जो रीजनेबल टारगेट जो पहुंचने की है वो 35,900 एंड 36,300, ये दो टारगेट हम लेके जाएंगे वीकली में, वीकली की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, डाउन साइड में अगर देखोगे मैंने आपको दे दिया, अगर कुछ गलत भी हो जाता है और मार्केट नीचे आ जाता है लेट्स से मंडे, बिकॉज यू डोंट नो एस्ट्रो विल वर्क ऑन मंडे और नॉट, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एस्ट्रो टाइमिंग, मंडे अगर मार्केट, मंडे या ट्यूसडे कभी भी एनी डे इन द वीक मार्केट आपको 33,300 के आसपास मिलता है, आपकी एक ब्लाइंड बाई होनी चाहिए मार्केट में, मिनिमम 700 पॉइंट्स की बाइंग होनी चाहिए, रेस्ट तो बोनस, मिनिमम 700 पॉइंट की बाइंग, 33,300 से 34,100, ये 700 पॉइंट की बाइंग आपको लेनी है अगर मार्केट आपको इस लेवल पे कभी भी मिल जाता है बाय चांस। ठीक है, क्लियर, वीकली व्यू इज क्लियर, वीकली लेवल इज क्लियर, सिर्फ तीन ही लेवल दिया है मैंने, दिस इज द डू डाई लेवल 35,900, 36,350, तीन लेवल है, नीचे का लेवल है 33,300, सिंपल, चार ही लेवल है वीकली के बैंक निफ्टी के, क्लियर, राइट। मैं मंडे ट्रेडिंग में आऊंगा। निफ्टी में अगर देखो, निफ्टी मेरे को ज्यादा बुलिश लग रहा है बैंक निफ्टी में, वैसे बैंक निफ्टी विल कंट्रीब्यूट ऑफ कोर्स, राइट, एंड ये देखो आपकी ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट में अगर आप मूवमेंट की लो, इम्प्लिसिट कैंडल की लो वीकली की, तो ये एक इम्प्लिसिट आपकी इनसाइड कैंडल बनी है, दैट मींस द मोमेंट ये फ्राइडे का डे हाई कट हो जाता है, जो ये सेल जोन आपको दिख रहा होगा 16,700 के आसपास, 16,700 के आसपास अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो माई स्ट्रेट टारगेट फर्स्ट वुड बी दिस 17,100, 400 पॉइंट का पॉजिटिव, सेकेंड टारगेट इज 17,300, थर्ड टारगेट इज 17,450। ओके, तो ये जो जोन है, ये जोन इज रीजनेबली अचीवेबल इजिली, आई थिंक ये लेवल तो रीजनेबली अचीवेबल हो जाना चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए 700 पॉइंट का मूव ऑन द पॉजिटिव साइड इन निफ्टी इटसेल्फ। ओके, निफ्टी की जो डूडाई लेवल है वो डूडाई लेवल यहाँ पे है 16,351, ये थोड़ा नीचे है, एंड दैट आल्सो गिव्स यू ए वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि निफ्टी शायद बड़ा ना गिरे, बैंक निफ्टी का पता नहीं, निफ्टी शायद बड़ा ना गिरे, बिकॉज निफ्टी अगर ये गिरना चालू किया ना 99% चांसेस 16,350 का लेवल है, 300-350 का जो लेवल है वहां से मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा, मार्केट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये लेवल से अगर गिर भी जाता है ना, ये लेवल से मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो उस केस में 17,100, 800 पॉइंट का पॉजिटिव साइड, जैसे मेरा व्यू तो रहेगा यहाँ तक आने के लिए निफ्टी का, ये भी एक अनटच लेवल है निफ्टी का 17,300। ओके, 17,300, तो देखो निफ्टी में भी जो लेवल मैं दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का 16,350, मुझे नहीं लगता आएगा। ओके, मुझे नहीं लगता आएगा, मुझे लगता है मंडे ये यहीं कहीं हल्का सा गैप डाउन करके फिर ऊपर जाना चालू कर देगा, मुझे जो लगता है कि शायद फ्राइडे का जो डे लो है वो सेव हो जाए मंडे, आई थिंक सो पर्सनली, बट ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मतलब ऐसे ट्रेड करना है आपको मंडे को, अगर फ्राइडे का लो पिछ 10 बजे तक नहीं कट होता है, फर्स्ट 1 आवर मार्केट पॉजिटिव हो जाता है और फ्राइडे का लो कट नहीं होता है, फिर तो आप श्योर हो कि मार्केट ऊपर 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 ही जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंबाइंड। ओके, बट अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन करता है तो उस केस में तो आपको थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, एवरीबॉडी नोज हाउ टू बाय द सेकंड लेग, तो सेकंड लेग में ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा लाइक दिस, एंड अगर ये 350 तक तो शायद नहीं आएगा, मैं मंडे का लेवल देता हूं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ वीकली वर में अगर मेरा कभी भी आस्ट्रो टाइमिंग व्यू गलत चला जाता है या प्राइस एक्शन एनालिसिस गलत चला जाता है, बट 350 के आसपास मार्केट आपको मिल जाता है, तो आपको एक ब्लाइंड बाई लेना है, जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको दिया था यहाँ पे, राइट, 33,300 पे मैंने दिया था, निफ्टी में 16,350, ये दोनों ब्लाइंड लेवल है हमारे बाइंग का, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, बट 99% ये लेवल से मार्केट ऊपर चला जाएगा। ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हेन आस्क पीपल आस्क मी इन द ग्रुप दैट
what is the view of next week? I said कि I'm not seeing market hugely sell. Okay, I don't see a huge sell in market. It will be either buy on dips or it might go also ultra positive. Okay, so हमारी जो निफ्टी में जो टारगेट होनी चाहिए वो 17,300 का मिनिमम होना चाहिए. मार्केट 450 भी आ सकता है, जैसे बैंक निफ्टी में अपर साइड मैंने गारंटी नहीं दिया था, दैट इज लाइक बोनस फॉर यू, राइट. निफ्टी में भी ये जोन का गारंटी नहीं है, बट इट मे बी पॉसिबल कि 17,450 तक मार्केट आ जाए. ओके, तो हमारे पास तो टाइमिंग है, मार्केट को जितना ऊपर जाना है जाने दो, वी डोंट केयर. हम लोग वेडनेसडे फर्स्ट हाफ तक तो मार्केट में पॉजिटिव ही है, बाय ऑन डिप्स, मतलब बाय ऑन डिप्स. सो वेडनेसडे के बाद वी विल थिंक ऑफ सेलिंग मार्केट, लाइक थर्सडे मॉर्निंग में हमारा सेल है, राइट. तो वेडनेसडे तक जहां तक जाते हैं जाने दो, ये लेवल आने दो, ये लेवल आने दो, वी डोंट केयर, तब तक वी आर ऑन बाय ऑन डिप्स. बट हाउएवर 17,300 टू 17,450 का रेंज इज अचीवेबल अगर मंडे फर्स्ट 1.5 आवर हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं. आई एम वेरी श्योर दैट दिस रेंज वुड बी अचीवेबल इजीली बाय मार्केट. क्लियर. निफ्टी में भी वीकली एनालिसिस किया क्या हमने, एक बार देखते हैं. हाँ, निफ्टी में भी वीकली एनालिसिस देखो. ये जो कैंडल बनी है, दिस कैंडल इज द बिगेस्ट कैंडल इन द recent one except this 1st February. बजट डे को अगर मैं माइनस कर दूं, in the entire like February, right? Yeah, February to March, and we are talking about February 21, 1 year का टाइम में बोल रहा हूँ. Within this 1 year of time period, this is the biggest candle of Nifty after this February of last week, जहाँ पे निफ्टी धुआंधार almost 1000 पॉइंट की मूवमेंट करी थी. This is the biggest candle in Nifty. Whenever we have a candle like this, which is almost a bullish engulfing candle, weekly basis, you cannot go on a very deep sell the next week immediately. It's not possible. Sell हो जाएगा, but sell will be bought always. Okay. So retracement को हमेशा buy करने की कोशिश करना next week में. और मुझे जो लगता है एटलीस्ट, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में भी बोला, छोटा कैंडल ही बनेगा वीकली शायद, बट ये ग्रीन बनना चाहिए मेरे हिसाब से. ओके, सो दैट मीन्स हमारा व्यू कैसे होगा, मंडे ऊपर जा रहा है, ट्यूसडे कंटिन्यू कर रहा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके डे एंड पे क्लोज कर रहा है ऊपर, वेडनेसडे फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, सेकंड हाफ नेगेटिव, थर्सडे बेसिकली आइडियली फर्स्ट हाफ डाउन, सेकंड हाफ रिकवरी, फ्राइडे पॉजिटिव मूवमेंट, सेकंड हाफ में डाउन, लास्ट में रिकवरी. ये कैसे दिख रहा है आपको कैंडल? इफ दिस इज द पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू सी, देन इट्स अ ग्रीन कैंडल वेयर द बॉडी इज ऑन द अपर साइड, राइट, आइडियली. सो कैंडल ऐसे ही बनेगा ना आपका. अगर आप, मैं बताऊं आपको कैंडल कैसे बनेगा, देखो ये बन गई बॉडी कैंडल की, ठीक है, और ये बन गई विक, राइट. दिस इज हाउ इट वुड बी, वेरी सिंपल. इट वुड बी डोजी कैंडल, as simple as that. It would be a doji candle. ऐसा कैंडल बनेगा नेक्स्ट वीक. ओके, इट वुड बी डोजी कैंडल, बट बाय कैंडल की जो कलर होगी वो ग्रीन होगी. ओके, तो देखते हैं हमारा व्यू सही जाता है या नहीं जाता है. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग इट. बहुत सिंपल एनालिसिस मैंने किया है इस बार, ठीक है, ज्यादा कुछ हमने लगाया नहीं. और फिबोनाची भी अगर हम ले लेते हैं फिबोनाची, तो देखो ये 50% यहाँ तक तो मार्केट आ ही जाएगा. 38 अगर सस्टेन कर गया, 50 तो मिनिमम आएगा ही आएगा. इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे का डे हाई जैसे ही कट हुआ, आप ये टारगेट के लिए गेम खेल सकते हो निफ्टी में इजीली. बट आई थिंक मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, 450 तक. हमारी टारगेट यहाँ तक है 17,300 आया, हमारा लॉन्ग पोजिशन कट. ठीक है, होप एवरीबडी इज क्लियर, राइट. सीधा मंडे की ट्रेडिंग में जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं. तो एनर्जी इज अ लिटिल बिट लो टुडे बिकॉज not well much, but yeah, no problem. हम फटाफट कर लेंगे. देखो ये पुराना है सर, ये मैंने एक वीकली बाई जोन यहाँ पे दिया 16,200, बट मैं आपको बाई बोल रहा हूँ 16,350 से, राइट. ये मैंने अभी बोला था कि डाउन साइड में आप 16,350 से कवर करने की कोशिश करोगे बैंक निफ्टी को, सॉरी निफ्टी को. अगर आया तो हम बाय करेंगे, राइट, करेक्ट. तो मंडे की जो हमारी एक पॉसिबिलिटीज है, डिपेंडिंग अपॉन ओपनिंग, दैट इज व्हाई मंडे इज वेरी क्रिटिकल. जैसे ग्लोबल मार्केट है और एसजीएक्स कितना 480 के आसपास एसजीएक्स बंद हुआ है, अराउंड दिस लेवल, राइट. तो पॉसिबिलिटीज है कि मंडे
फर्स्ट 5-10 मिनट्स में ये झटका मारता है, पॉसिबिलिटीज है, गारंटी नहीं है। या फिर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हो और सीधा ऊपर जाना चालू करे। ओके, सीधा ऊपर जाना चालू करे। हमें बाई ऑन डिप्स ही लेना है, कोई भी लेवल पे आप बाई करो। मुझे लगता है मिनिमम ये जो थर्सडे की जो हाई है 16,750, जहां पे मैंने एक सेल जोन बनाया है, मार्केट वहां तक मिनिमम आ जाएगा। ये सेल जोन बनाया है मैंने, बट ये सेल जोन पे सेल मत कर देना मंडे को। मंडे आई एम नॉट आस्किंग यू टू सेल एट ऑल। ओके, हाँ व्यू गलत चला जाएगा, गलत चला जाएगा, अलग बात है, वी डोंट केयर, बट सेल की रिस्क हम मंडे नहीं ले सकते। रादर आई विल गो फॉर ए बाय ऑन दिप्स। ओके, ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मार्केट में इट इज वेरी वेरी क्लियर के ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सिनारियो सिंपल है, अगर सीधा अकॉर्डिंग टू एसजीएक्स निफ्टी 480 पे ओपन करता है और फर्स्ट 15 मिनट ओआरबी में ट्रेड करना है आपको, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में 15 मिनट का कैंडल ले लो, उसका हाई कट हुआ, गो फॉर बाय फॉर द एंटायर डे आइडियली। ओके, सिंपल। बट ओआरबी में सेल मत कर देना, दैट मींस फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल अगर रेड बन जाता है तो वेट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स कैंडल। आई एम वेरी वेरी श्योर द नेक्स्ट 15 मिनट्स कैंडल विल बी ग्रीन, और वो ग्रीन कैंडल का हाई जब कट होगा देन गो फॉर बाय। जैसे मंडे में सेल करने का मूड में नहीं हूं। ओके, गैप डाउन इज ए वेरी वेरी गुड चांस फॉर अस टू गो लॉन्ग इवन पोजिशनल, दैट इज व्हाट माय व्यू इज, अनलेस वार हो जाए। ओके, ठीक है, तो गैप डाउन अगर हो जाता है, जो पी होल्डर्स हैं वो अपनी पोजीशंस कट कर ले और सी में लॉन्ग करें। ठीक है, और दिन भर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। तो यही है, मतलब ये गैप फिल 395 350 ये लेवल से कहीं पे भी आप बाय कर सकते हो। या फिर अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा है इवन आफ्टर गैप डाउन एंड ओपनिंग, सो 15 मिनट्स का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करो आप। ओके, क्लियर। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होता है तो बढ़िया चांस है। उस केस में ये चांसेस हैं कि शायद मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करे, पॉसिबिलिटीज है। ओके, बट उस केस में अगर मार्केट जाता है तो जैसे मैंने बोला सेल नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर जाता है इवन आफ्टर गैप अप, जो मुझे थोड़ा सा रेयर लगता है, बट बाई चांस जैसे ही ये डे हाई कट होगा, ये वाला फ्राइडे का डे हाई कट होगा, तो आप बाय कर सकते हो। या फिर अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो ये लेवल पे ऊपर बाय करो, 16,730 के ऊपर बाय करो, और 860 तक इजीली ले सकते, 130 पॉइंट्स आपको स्ट्रेट मिलेगा। ये बाइंग आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। स्पेशली थर्सडे का हाई ले लो, मैंने तो ये बोला है, एक्चुअली यहाँ पे भी बाइंग हो सकती है, थर्सडे का हाई ले लो। 730 के ऊपर मार्केट गया, ये 130 पॉइंट्स आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट बाइंग आपकी होगी ऑन मंडे। अगर इस तरह की सिनारियो बनता है, मॉर्निंग में गैप अप हो जाता है एंड कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, सो ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, सिंपल है, ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, 850 तक इजीली लेके आओ कल। दो ही सिनारियो है निफ्टी में, और कोई ट्रेड है ही नहीं मेरा। ठीक है, यही दो सिनारियो पे अपन ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में भी अपन जाएंगे 5 मिनट्स में, टाइमिंग तो मैंने आपको दे ही दिया है ऑलरेडी, राइट। आई होप एवरीबडी हैज द टाइमिंग ऑन देयर प्लेट। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देखो, इसमें यहाँ पे एक आपको रेक्टेंगल पैटर्न भी मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट इट्स ए नॉर्मलाइज रेक्टेंगल पैटर्न। ओके, वेरी सिंपल है। ये रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट किया, यहाँ तक ट्रेड लो, बट यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा। ये इसका हाई कट हुआ 34,986, ये जो स्विंग हाई है ये कट हुआ, ये थर्सडे डे हाई तक आएगा 35,340, तो ये बाइंग भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये भी बहुत बढ़िया बाइंग है, स्ट्रेट बाइंग है। ठीक है, सो अराउंड 34,970, 34,000 या 34,000 या 35,000 ले लो, मोटा मोटा 35,000 टू 35,390, ये जो 390 पॉइंट की बाइंग है, ये बाइंग आपसे कोई छीन नहीं सकता। दिस इज गोइंग टू वंडरफुल बाइंग, जब भी ब्रेकआउट मारेगा बाय कर लेना 400 पॉइंट का। ठीक है, बाकी सेकंड ट्रेड जो हमारी होगी डिपेंडिंग अपन द मार्केट ओपनिंग, मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा नीचे आता है आने तो कोई बात नहीं, ये रेक्टेंगल का हाई, ये स्विंग हाई कट किया, यहाँ से यहाँ तक भी बाइंग लिया जा सकता है। स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, 34,719 तो 34,971, ये भी 250 पॉइंट की बाइंग है, ये भी बढ़िया बाइंग है। रेक्टेंगल का टारगेट मिनिमम देके जाएगा ये। ठीक है, ये एक बाइंग है बैंक निफ्टी में।
सेकंड बैंक जो है आपके जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन करता है, गैप डाउन अगर ओपन करता है तो नीचे आता है, बढ़िया बात है। जैसे मैंने बोला ओपनिंग रेंज इसको बनाने दो, ये ओपनिंग रेंज को डिफेंड करने दो। जैसे ही ओपनिंग रेंज डिफेंड हुआ, इस ओपनिंग रेंज का हाई कट पे बाय करो फुल डे, यहाँ एटलीस्ट तो यहाँ तक, ओके, एटलीस्ट 34,900 तक। तो ये भी 600 पॉइंट की बाइंग आपको दे जाएगा कल, ठीक है। इधर ये ट्रेड होगा, जो स्कैल्पिंग के 2 ट्रेड मैंने दिए वो ट्रेड करो, या फिर लास्ट वाला जो मैंने निफ्टी में भी आपको बोला, मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, ये ऊपर जाता है, क्योंकि ये एक सेल जोन है, मैं तो सेल नहीं करूंगा क्योंकि ये कंसोलिडेट होगा, पूरा सेल नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट मारेगा, ये अपने को ट्रेड करना है मंडे, और इसी ट्रेड को कंटिन्यू करना है ट्यूसडे एटलीस्ट 10 o'clock तक, ओके राइट। सो मंडे की 3 ही मतलब 2 ट्रेडिंग स्टाइल तो 2 ही है, अप गैप अप एंड गैप डाउन का, ठीक है। तो फ्लैट में आप वेट करो प्राइस एक्शन बनाने का, सेकंड लेग पे बाय कर सकते हो। रेस्ट 2 सिनेरियो जो मैंने स्कैल्पिंग के दिए हैं वो स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो यही 4 पॉइंट आपको कल याद रखने हैं मंडे के लिए, यही 4 स्टाइल में ही ट्रेड होगा, देख लेना मोस्टली, ओके। कल हाउएवर द व्यू इज सेल नहीं करना का है, ट्राई टू डू ए बाय ऑन डिप्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, कल मिलते हैं।